Yes, hello students. How are you? Yes, students. Today we discuss about crystal lattice, space lattice, unit cells, and types of unit cells. And finally, we will calculate how many atoms are present in different type of unit cells. Different type of unit cells are there. So per unit cell, how many atoms are present? That will be calculated. So first of all, you must know what do you mean by crystal lattice, what do you mean by space lattice, and how they differs. And before that, you must know how a crystal grows. कि कोई भी अगर मान से क्रिस्टल ग्रो करता है तो उसकी ग्रोथ कैसे होती है. देखिए तो क्रिस्टल की ग्रोथ कैसे होगी. देखिए सो फॉर दिस एज वी नो इन क्रिस्टल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जैसे मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा कंस्टिट्यूएंट. सो इन क्रिस्टल constituent particles may be atoms, they may be ions, or they may be molecules. That will depend upon the nature of the crystal. So during the growth of crystal, first of all constituent particles they combine to form a row. कि सबसे पहले जो भी constituent particles है, they will combine to form a row like this. कि जैसे मैंने बताया row of the constituent particles. Then what happens? Different rows combines to form a layer of constituent particles. कि उसके बाद जो भी रोज हम कंबाइन करेंगे, और अगर मान लीजिए रोज कंबाइन करते हैं तो उससे क्या बन जाता है? A layer of constituent particles that will be formed. And keep in mind, this arrangement of constituent particles in a row that will be called as two-dimensional arrangement. कि एक रो के अंदर जो भी constituent particles अरेंजमेंट है वो तो सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करेगी, और जब मैं रोज को कंबाइन करूंगा तो उससे क्या बन जाता है? प्लेन ऑफ द क्रिस्टल. And this plane of the crystal that will be called as two-dimensional arrangement. And after that what happens? On first layer, second layer will come, second layer के ऊपर third layer के ऊपर fourth layer and so on. And now that will result to the formation of a three-dimensional arrangement of the constituent particles. So keep in mind, during growth of crystal, first of all, row will be formed. When rows combines, then they will form plane of the crystal, or you can say layer of the crystal, and then different layers combines. Then that will result in the formation of three-dimensional crystal. तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी क्रिस्टल है, then in every crystal there is regular and infinite arrangement of the constituent particles. And keep in mind, this regular and infinite arrangement of constituent particles in a crystal that will be called as crystal lattice. तो crystal lattice का मतलब क्या होता है? कि the regular and infinite arrangement of constituents of a crystal in three-dimensional space that will be called as crystal lattice. Now question comes, what do you mean by space lattice? So suppose you are given a crystal lattice, then as you know in case of crystal lattice, there is regular and infinite arrangement of the constituent particles. They may be atoms, they may be ions, or they may be molecules. But now suppose from this crystal lattice, all the constituent particles are replaced by spheres. कि जो भी constituent particles है, अब उनको मान लीजिए मैंने किससे replace कर दिया? Spheres से. Now what you will have? You will have the regular and infinite arrangement of spheres in three-dimensional space. And keep in mind, this regular and infinite arrangement of spheres in three-dimensional space that will be called as space lattice. So keep in mind, crystal lattice and space lattice, in what way they differ? In crystal lattice, there is regular and infinite arrangement of the constituents, but in space lattice, there is regular and infinite arrangement of the spheres. Now, question comes, what do you mean by unit cell? Unit cell का मतलब क्या होगा? तो देखिए unit cell का मतलब क्या होता है? कि suppose you are given a crystal lattice. Now from this complete crystal lattice, I can select a smallest three-dimensional portion. And what must be the characteristics of this three-dimensional portion? If this three-dimensional portion is repeated over and again, then it must produce the complete crystal lattice. Now this smallest three-dimensional portion of the complete crystal lattice, which when repeated produces complete crystal lattice, that will be called as unit cell. तो सिंपली मैं ये बोल सकता हूँ किसी भी क्रिस्टल लैटिस का जो स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल पोर्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल. तो देखिए यूनिट सेल का मतलब कि द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल पोर्शन of a crystal lattice
which on repetition gives crystal lattice, that will be called as unit cell. Now we will discuss about the type of crystal lattice. What are the different types of a crystal lattice? So keep in mind, basically crystal lattice they are of two types. One are the two dimensional lattices और दूसरे होते हैं इसके अंदर थ्री डायमेंशनल लैटिसेस. सेकंड आर द थ्री डायमेंशनल लैटिस. It's simply crystal lattice that is of two types. One is the two dimensional lattice और दूसरा कौन सा होता है three dimensional lattice. So first come to two dimensional lattice. अब देखिए two dimensional lattice का मतलब क्या होता है. Two dimensional lattice means कि the regular and infinite arrangement of constituents in one plane, that will be called as two dimensional lattice. कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, अगर मान लीजिए उनका रेगुलर और इनफाइनाइट अरेंजमेंट है किसमें, सिर्फ एक प्लेन के अंदर, एक लेयर के अंदर, देन दैट विल बी कॉल्ड एज टू डायमेंशनल लैटिस. और थ्री डायमेंशन मैंने अभी आपको बताया था कि द रेगुलर एंड इनफाइनाइट अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, दैट विल बी कॉल्ड एज थ्री डायमेंशनल लैटिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ टू डायमेंशनल लैटिसेस. ये जो टू डायमेंशनल लैटिसेस उसके कितने टाइप्स हैं. सो कीप इन माइंड, टू डायमेंशनल लैटिसेस दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. कौन कौन से देखिए, यहां पर बता रहा हूं टू डायमेंशनल लैटिस और यहां पर उसका बता रहा हूं यूनिट सेल. तो देखिए क्या होता है. टू डायमेंशनल लैटिस दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप. सबसे पहले ले लीजिए स्क्वायर लैटिस. एंड कीप इन माइंड, इन केस ऑफ स्क्वायर लैटिस इट्स यूनिट सेल, यूसी का मतलब होता है यूनिट सेल. यूनिट सेल दैट विल बी स्क्वायर. अगर मान लीजिए आपके पास स्क्वायर लैटिस है, तो स्क्वायर लैटिस तो क्या होगा, टाइप ऑफ टू डायमेंशनल लैटिस. और टू डायमेंशनल लैटिस के अंदर यूनिट सेल होगा, क्या होगा, स्क्वायर होगा. देखिए कैसे दिखाते हैं. स्क्वायर लैटिस देखिए मैं ड्रा कर रहा हूं. दिस इज द स्क्वायर लैटिस. That is representing the regular and infinite arrangement of spheres in one plane. Now suppose its unit cell is to be drawn. So keep in mind, a unit cell can be drawn by connecting the 4 points. अब जैसे मान लीजिए इसके अंदर मैंने 4 points को कनेक्ट किया, then I will get a scale. और ये scale क्या है, scale is the unit cell of the square lattice. अब देखिए scale को आप रिपीट करते जाइए, इस तरह से स्क्वायर को आप रिपीट करते जाइए, आपके पास अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, यू विल गेट ए स्क्वायर लैटिस. When these squares are repeated, then ultimately what will get? You will get a square lattice. अब ये देखिए मेरे पास क्या बन गया, स्क्वायर लैटिस. और इस स्क्वायर लैटिस में रिपीट मैंने किसको किया, इस पोर्शन को मैंने रिपीट किया. ये पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, इसका यूनिट सेल. जस्ट लाइक सेकंड वन इज रेक्टेंगुलर लैटिस. एंड कीप इन माइंड, in case of rectangular lattice unit cell that will be rectangle. Just like third one is parallelogram lattice, and in parallelogram lattice unit cell that will be parallelogram. Just like rhombic lattice, और rhombic lattice में unit cell देखिए क्या होगा, rectangle with interior points. In case of rhombic lattice, which is the type of crystal lattice, और उसमें जो unit cell होगा क्या होगा, rectangle with interior points. और finally हेक्सागोनल लैटिस, और हेक्सागोनल लैटिस के अंदर देखिए यूनिट सेल क्या होगा, रोम्बस विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. यहां पर अगर मेरे पास हेक्सागोनल लैटिस है, तो हेक्सागोनल लैटिस के अंदर यूनिट सेल क्या होगा, रोम्बस. और इस रोम्बस के अंदर यूनिट सेल क्या होगा, तो हेक्सागोनल लैटिस तो क्या होगा इसके अंदर क्रिस्टल लैटिस, और इसके अंदर यूनिट सेल क्या होगा, रोम्बस. और रोम्बस के अंदर जो एंगल होगा कितने का होगा, 60 डिग्री का. अब देखिए इसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं इंटीरियर पॉइंट का मतलब क्या होता है. So for this consider rhombic lattice. मान लीजिए मैं यहाँ पर rhombic lattice ले रहा हूँ. क्या देखिए rhombic lattice, rhombic lattice. अब देखिए मेरे पास rhombic lattice. This one is the rhombic lattice. ये रोम्बिक लैटिस कंप्लीट जो मैंने ड्रा किया है, रोम्बिक लैटिस. अब इस देखिए रोम्बिक लैटिस है. अब रोम्बिक लैटिस के अंदर यूनिट सेल क्या होगा, रेक्टेंगल, और उस रेक्टेंगल के अंदर क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट. अब देखो कैसे बनाएंगे इसको.
तो अगर मान लीजिए यूनिट सेल मेरे को बनाना हो तो देखो यूनिट सेल में कैसे कंस्ट्रक्ट करूंगा, इसके अंदर यूनिट सेल देखिए होगा, ये पॉइंट्स कनेक्ट कर दीजिए इसके और इन पॉइंट्स को कनेक्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया ये यूनिट सेल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग 4 पॉइंट्स। तो मैंने 4 पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया तो मेरे पास यूनिट सेल बन गया। अब देखो यूनिट सेल यहाँ पर क्या है, रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल के बीच में देखिए एक पॉइंट और है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर पॉइंट्स। सो कीप इन माइंड इन केस ऑफ रोम्बिक लैटिस यूनिट सेल दैट विल बी रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए मेरे पास हेक्सागोनल लैटिस हो तो उसमें यूनिट सेल क्या होता है, रोम्बस विद एंगल ऑफ 60 डिग्री होता है। तो सेकंड मैंने बताया था आपको 3 डायमेंशनल लैटिस। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे यूनिट सेल्स हैं वो परमेटिव होते हैं, और यूनिट सेल कौन से होते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, परमेटिव, यूनिट सेल, और सेकंड होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। लेटर ऑन द डिटेल्स विल बी डिस्कस्ड, पर यहां पर देखिए मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है। सबसे पहले देखिए परमेटिव यूनिट सेल क्या होता है। तो परमेटिव यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, इन केस ऑफ स्टेयर लैटिस, ये मेरे पास स्टेयर लैटिस है। नाउ इन केस ऑफ स्टेयर लैटिस सेलेक्ट द यूनिट सेल, देखिए ये यूनिट सेल, ये भी यूनिट सेल है, कोई भी एक यूनिट सेल आप ले लीजिए। नाउ इन दिस यूनिट सेल points are present only at the corner, and keep in mind a unit cell in which points are present, or you can say constituents are present only at the corners, that will be called as permeative unit cell, or that may also be called as simple unit cell। permeative का दूसरा नाम क्या होता है, simple unit cell, simple unit cell। so a unit cell in which points are present only at the corners, that will be called as simple unit cell, or that can also be called as permeative unit cell। और सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, देखिए अब ये सेंटर्ड यूनिट सेल है। अब सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। ध्यान रखिए यहाँ पर हर एक पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, कंस्टिट्यूएंट को। तो सिंपली मैं पॉइंट कहूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट्स कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर्स के ऊपर। देखिए कॉर्नर के साथ साथ एक पॉइंट सेंटर में प्रेजेंट है। तो सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, a unit cell in which points are present at other centers other than the points of points present at the corners। कि corners के साथ साथ अगर किसी भी दूसरे सेंटर के ऊपर अगर पॉइंट प्रेजेंट होगा तो उसको मैं क्या कहूंगा, सेंटर्ड यूनिट सेल कहूंगा। और आगे हम देखेंगे सेंटर कौन कौन से हो सकते हैं, दैट कैन बी फेस सेंटर, दैट कैन बी बॉडी सेंटर, और दैट कैन बी एज सेंटर। तो ध्यान रखिए कॉर्नर के साथ साथ यहाँ पर जो भी पॉइंट प्रेजेंट होगा किसी सेंटर के ऊपर होगा। That may present on the body center, that may present on the face center, that may present on the edge center. That is why these units are called as centered units। तो बेसिकली मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सा बताया, तो सिंपल या परमेटिव यूनिट सेल होता है जहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या पॉइंट्स कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर के ऊपर। और दूसरा सेंटर्ड होगा, तो सेंटर्ड के अंदर कॉर्नर्स के साथ साथ किसी भी दूसरे सेंटर के ऊपर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हो जाएंगे। अब उसके बाद हम लेंगे what are the characteristics of a crystal lattice। next one, characteristics of a crystal lattice। characteristics of crystal lattice। What are the characteristics of a crystal lattice? So, the first characteristics, in every crystal lattice, every point that is called as lattice point। कि अगर मान लीजिए मेरे पास किसी भी टाइप का क्रिस्टल लैटिस है तो उस क्रिस्टल लैटिस में जो भी पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोल देते हैं। सो द पॉइंट्स आर कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट्स। सेकंड, every point that will represent a constituent, कि जो भी पॉइंट होगा that will represent a constituent। जैसे जितने भी यहाँ पर मैंने पॉइंट्स दिखा रखे हैं ये सभी पॉइंट क्या होते हैं, constituents। and keep in mind these constituents may be atoms, they may be ions, or they may be molecules, that will depend upon the type of crystal। so every point that will represent a constituent particle। and third one,
to show the geometry all the points they are connected by lines। जैसे यहाँ पर देखिए पॉइंट्स मैंने लाइन से कनेक्ट किया, ये एक पॉइंट था, सेकंड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट, इनको मैंने किससे कनेक्ट किया? लाइन से। किसके लिए? टू शो द ज्योमेट्री। सो कीप इन माइंड टू शो द ज्योमेट्री ऑल द पॉइंट्स दैट आर कनेक्टेड बाय द लाइंस, कि जितने पॉइंट्स होंगे उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल। पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल, parameters of unit cell means in what form a unit cell can be defined, or you can say what are the parameters of a unit cell, कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। सो कीप इन माइंड यूनिट सेल अभी हमने डिफाइन किया था कि द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ द कंप्लीट स्पेस लैटिस which on repetition produces crystal lattice that will be called as unit cell। so keep in mind in a unit cell parameters are axial lengths and interfacial angles, कि किसी भी यूनिट को डिफाइन करने के लिए एक तो मेरे को चाहिए डिफरेंट एक्सिस के अलोंग लेंथ जिसको हम बोलते हैं एक्सियल लेंथ्स, और दूसरा किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए मेरे को चाहिए एक्सिस के बीच के एंगल जिनको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेसियल एंगल, क्योंकि जो एक्सिस ऑफ फेस को रिप्रेजेंट करेंगे तो फेस के बीच जो भी एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे? इंटरफेसियल एंगल। कैसे देखिए? So it means in case of unit cell parameters are one are the axial lengths which are represented by A, B, C, and second interfacial angles। किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए एक तो मेरे को चाहिए एक्सियल लेंथ। एक्सियल लेंथ का मतलब होता है लेंथ अलोंग द एक्सिस, और सेकंड मेरे को चाहिए इंटरफेसियल एंगल। इंटरफेसियल एंगल्स आर अल्फा, बीटा एंड गामा। और इंटरफेसियल एंगल का मतलब क्या होता है? एंगल बिटवीन द फेसेस, और यू कैन से एंगल बिटवीन फेसेस ऑफ ए यूनिट सेल आर कॉल्ड एज इंटरफेसियल एंगल्स। देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। सो फॉर दिस कंसीडर यूनिट सेल। यहां पर मैं एक यूनिट सेल कंस्ट्रक्ट करूंगा। Consider this unit cell। Now in this unit cell पहले आप देखिए एक्सियल लेंथ क्या है। तो एक्सियल लेंथ क्या होते हैं? लेंथ अलोंग द एक्सिस। तो देखिए इस एक्सिस के अलोंग लेंथ उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए से। ये जो लेंथ है कौन सी है? लेंथ ए है। दिस लेंथ इज बी एंड दिस लेंथ इज सी। सो लेंथ अलोंग द 3 एक्सिस दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सियल लेंथ। अब उसके बाद देखिए अब इन फेसेस के बीच जो एंगल बनेंगे उनको क्या कहेंगे? इंटरफेसियल एंगल। देखिए एक तो यहां पर बनेगा ए और बी के बीच, दूसरा बी और सी के बीच, और तीसरा सी ए के बीच। सो कीप इन माइंड एंगल बिटवीन बी एंड सी दैट विल बी कॉल्ड एज अल्फा, एंगल बिटवीन सी एंड ए दैट इज बीटा, और ए और बी के बीच जो एंगल बनेगा कौन सा होगा? गामा। तो कीप इन माइंड किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए मेरे को कौन से पैरामीटर्स हैं? एक्सियल लेंथ और इंटरफेसियल एंगल। एंड कीप इन माइंड इंटरफेसियल लेंथ्स आर ए, बी, सी, और इंटरफेसियल एंगल्स कौन से होते हैं? अल्फा, बीटा, और एक कौन सा होता है इसके अंदर? गामा। अब उसके बाद सबसे पहले हम लेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स डिपेंडिंग अपॉन एक्सियल लेंथ्स एंड इंटरफेसियल एंगल्स। सो नाउ वी विल डिफाइन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स on what basis? Based on the axial lengths and interfacial lengths. Depending upon the axial lengths and interfacial angles, unit cells they are divided into different categories. So keep in mind, depending upon the axial length and interfacial angle, there are 7 types of unit cells.
यूनिट सेल्स के कितने टाइप होते हैं? इसमें 7 टाइप्स होते हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देखिए कौन कौन से। फर्स्ट वन क्यूबिक यूनिट सेल। नाउ इन केस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल में यूसी ले लेता हूं। यूसी का मतलब होता है यूनिट सेल। तो सबसे पहले क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूबिक यूनिट सेल में देखिए क्या होगा, A that is equal to B that is equal to C means all the three lengths are equal and angles alpha is equal to beta is equal to gamma and every angle that is of 90 degree। ये तीनों एंगल इक्वल और हर एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री। सेकंड टेट्रागोनल। Now in case of tetragonal units, A that is equal to B but that is not equal to C। Angles alpha is equal to beta is equal to gamma and every angle that is of 90 degree। उसके बाद थर्ड hexagonal unit cell। Now in hexagonal unit cell A that is equal to B but that is not equal to C। Angles alpha is equal to beta they are of 90 degree। एंगल गामा कितने का होगा? 120 डिग्री। जो गामा एंगल होगा वो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। उसके बाद फोर्थ रोम्बोहेड्रल। The fourth type of unit cell is rhombohedral and in case of rhombohedral unit cell A is equal to B is equal to C। Angles alpha is equal to beta is equal to gamma but no angle will be of 90 डिग्री। कोई भी एंगल इसके अंदर 90 डिग्री का नहीं होगा। इसी तरह से ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। ये ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल A is not equal to B, B is not equal to C but angle alpha is equal to beta is equal to gamma they are equal and every angle that will be of a 90। उसके बाद नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम आता है इसके अंदर मोनोक्लिनिक। In case of monoclinic A is not equal to B is not equal to C। Angles alpha is equal to gamma they are of 90 degree but not equal to beta means एंगल बीटा होगा 90 से क्या होगा? डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्राइक्लिनिक। In case of triclinic unit cell A that is not equal to B, B is not equal to C। Angles alpha is not equal to beta is not equal to gamma and no angle is of 90। कोई भी एंगल इसमें 90 डिग्री का नहीं है। So these are the different parameters of the different type of unit cells। Unit cells है based on the axial length and interfacial angle unit cells are of 7 types। कौन कौन से होते हैं इसमें? क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड वन इज ट्राइक्लिनिक। अब इसको याद करने के लिए शॉर्टकट में इसको ऐसे लिख देते हैं। शॉर्टकट में ये इनको याद करने के लिए शॉर्टकट मेथड उसको बोलते हैं कथ्रोमट। इट मींस क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और लास्ट कौन सा होता है? ट्राइक्लिनिक होता है। नाउ these 7 type of unit cells they are also called as crystal systems। These 7 type of lattices or these 7 type of unit cells they are also called as crystal system। इनको हम क्या बोल देते हैं? crystal systems भी बोल देते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे कि what are different type of unit cells depending upon the position occupied by the constituent particles। ये तो मैंने बताया that was the classification of unit cells on the basis of axial length and interfacial angles। Now we will classify different type of unit cells on what basis? On the basis of the positions occupied by the constituent particles। अब उसके बाद देखिए
types of unit cells. Next one, types of unit cells. On what basis? On the basis of positions occupied by constituents. और constituents मैंने आपको बताया, they may be atoms, they may be ions, they may be molecules. So keep in mind, depending upon the position occupied by constituent particles, basically unit cells there are two types. One are the two types. One are the simple or primitive unit cell, and second one are the non-primitive or centered unit cell. Unit cell की जगह किधर वहाँ पर use. So keep in mind, depending upon the position occupied by the constituent particles, unit cells there are two types: simple or primitive unit cell, and second one is non-primitive or centered unit cell. So before going to in detail, you must know in a unit cell what are the positions which can be occupied by the constituents. कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर किस किस पोजीशन के ऊपर कंस्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं, यू मस्ट नो दैट. तो देखिए पहले बता रहा हूं पोजीशंस ऑक्युपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट्स. पोजीशंस occupied by constituents in a unit cell. In a unit cell, what are the different positions which can be occupied by constituents? So for this, today, ये मैं कोई भी एक यूनिट सेल ड्रा कर रहा हूं. यहां देखिए, this one is a unit cell. Now in this unit cell, what are the positions which can be occupied by constituents? With their number बता रहा हूँ. सबसे पहले देखिए, constituents can be present at the cube corners. और क्यूब कॉर्नर्स का नंबर कितना होता है? 8. नंबर यहां लिख रहा हूं, कितने क्यूब कॉर्नर होते हैं? 8. कौन कौन से देखिए, ये मैं दिखा रहा हूं क्यूब कॉर्नर्स. 1 2 3 4 5 6 7 8. So it means in a unit cell there are 8 cube corners. क्यूबिक यूनिट सेल है. क्यूबिक यूनिट सेल में कितने क्यूब कॉर्नर होते हैं? 8 क्यूब कॉर्नर्स होते हैं. एंड ऑन दीज 8 क्यूब कॉर्नर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन बी प्रेजेंट. सेकंड, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में प्रेजेंट होता है फेस सेंटर्स. फेस सेंटर्स कितने होते हैं? 6. कौन से देखिए, फेस सेंटर ध्यान से देखिए, मैं से देखा 1 2 3. ये तो कौन सा फेस सेंटर है? 4 साइड है. अब एक अपर फेस होता है, क्योंकि ध्यान रखिए क्यूब में टोटल 6 फेसेस है. 4 साइड फेस होते हैं, एक ऊपर और एक यहाँ पर होता है लोअर के अंदर. तो ये तो मैंने फेस सेंटर दिखाया किसके? दीज आर द फेस सेंटर्स ऑफ द 4 फेसेस व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड. अब इसी तरह एक फेस देखिए ऊपर है, तो उसका ये सेंटर ऊपर होगा. एक फेस नीचे, उसका ये सेंटर. इसका मतलब 6 particles can be present at the 6 face centers. उसके बाद constituents can be present at the edge centers. और edge centers कितने होते हैं? 12. टोटल edge center कितने होते हैं? 12. क्यों देखिए, in a unit cell अगर मेरे पास क्यूबिक यूनिट सेल है तो उस केस में 12 एजेस होते हैं, एंड सेंटर ऑफ एवरी एज दैट विल बी कॉल्ड एज एज सेंटर. देखिए कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखिए इनको. मैं ये दिखा रहा हूं एज सेंटर. देखिए, एक तो ये सेंटर है, सेकंड एज सेंटर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट. उसके बाद देखिए 9 10 11 12. There are 12 edges in a cubic unit cell
एंड सेंटर ऑफ एवरी एज दैट विल बी कॉल्ड एज एज सेंटर। तो टोटल 12 क्या होंगे, एज सेंटर होंगे। एंड वन पार्टिकल में बी प्रेजेंटेड बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर कितना होता है, 1 होता है। अब बॉडी सेंटर क्या होता है, किसी भी यूनिट सेल की इंटीरियर, किसी भी यूनिट सेल का बिल्कुल सेंटर होता है, उसको क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर कहेंगे। सो कीप इन माइंड इन ए यूनिट सेल, अगर आपके पास यूनिट सेल किस टाइप का, क्यूबिक, सो इन ए क्यूबिक यूनिट सेल particles can be present at cube corners. Number of cube corners are 8. Particles may present at the face centers. Face centers are 6. Particles may present at the edge center. Number of edge centers are 12. And particle may present at the body center. और body center कितना होता है, 1. And these are the different positions which are occupied by the constituent particles. अब सबसे पहले मैं ले रहा हूँ types of unit cells on the basis of position occupied by constituent। तो 2 टाइप है, तो पहले ले लीजिए सिंपल और परमेटिव यूनिट सेल। फर्स्ट वन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो पहले ले लीजिए सिंपल यूनिट सेल, which is also called as permeative unit cell। तो देखिए सिंपल यूनिट सेल क्या होगा, a unit cell in which particles are present only at the cube corners। कि अगर मान लीजिए किसी भी यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल्स सिर्फ क्यूब कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट होंगे, तो उसको मैं क्या कहूंगा, सिंपल यूनिट सेल। जैसे देखिए अभी हमने ड्रा किया था, अगर मेरे को सिंपल यूनिट सेल बनाना हो तो सिंपल यूनिट सेल के लिए I will show constituent particles only at the cube corners। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये मेरे पास सिंपल यूनिट्स है। This one is also called as permeative units। Second, non-permeative or centered units। अब देखिए नॉन परमेटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगा, कि एज वी नो इन ए यूनिट सेल इन एडिशन टू द क्यूब कॉर्नर particles may present on the face center, they may present on the edge center, they may present on the body center। तो नॉन परमेटिव यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, ए यूनिट सेल in which particles are also present at other positions in addition to the particles present at the cube corner, that will be called as non permeative unit cell, or that may also be called as centered unit cell। Now non-permeative और centered unit cells, there are following types। सबसे पहले ले लीजिए इसके अंदर face centered unit cell। non-permeative unit cell है, उसमें सबसे पहले मैं ले रहा हूं कौन सा, face centered unit cell। आप देखिए face centered unit cell का मतलब क्या होता है। तो face centered unit cell क्या होगा, a unit cell in which 8 particles are present at the cube corners and 6 particles are present at the face centers, that will be called as face centered unit cell। अब मान लीजिए मेरे को face centered unit cell कंस्ट्रक्ट करना हो, देखिए इसको मैं ऐसे कंस्ट्रक्ट करूंगा। This one is the unit cell। Now I have to construct the face centered, and as you know face centered unit cells 8 particles are present at the cube corner। This one 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। And in addition to these cube corner particles are also present at the 6 face center। अभी देखिए face centers जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। So that will be called as face centered unit cell। उसके बाद नेक्स्ट होता है इसके अंदर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, अब देखिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या होगा, a unit cell in which 8 particles are present at the cube corners and 1 particle is present on the body center, that will be called as body centered unit cell। अब जैसे मान लीजिए मेरे को बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कंस्ट्रक्ट करना हो, तो देखिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए मैं क्या करूंगा, ये 8 particles they are present at the cube corner
and one particle that will present on the body center. अब ये आपके पास कौन सा बन जाएगा, body centered. In a body centered unit cell, 8 particles will present on the cube corners and one particle that will present on the body center. उसके बाद third, end face centered units. एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. अब देखिए एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या होगा कि यूनिट सेल इन विच 8 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द क्यूब कॉर्नर्स एंड 2 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द एंड फेसेस. एंड फेसेस का मतलब होता है अपोजिट फेसेस. कैसे देखिए, कम हियर अगेन, दिस वन इज अ यूनिट सेल. Here I have shown 8 particles at the cube corners. अब इसमें 2 पार्टिकल में अपोजिट फेसेस के ऊपर दिखा देता हूं. 1 they may present here, they may present here, और one may present on the upper face. तो दूसरा अपोजिट कौन सा होगा, लोअर फेस होगा. So unit cell in which 8 particles are present at the cube corners and 2 particles are present at the opposite faces, centers, or you can say end centers. That will be called as end face centered unit cell, or that can also be called as end centered unit cell. And one is the edge centered. एज सेंटर्ड यूनिट सेल. अब देखिए एज सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या होगा. देखिए एज सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब कंसीडर द सेम केस. अब एज सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या होगा, ए यूनिट सेल इन विच 8 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द क्यूब कॉर्नर्स and 12 particles are present at the edge centers. That will be called as edge centered unit cell. अब देखिए एटम में कहां से होगा. These are the 8 particles at the cube corners. Now as we know, in a cube there are 12 edges and center of every edge that will be called as edge center. तो वहां पर पार्टिकल होंगे कहां दिखाएंगे. देखिए ये एक एज है, इसका सेंटर 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद एक 4 एजेस हैं 1 2 3 4, जिनके सेंटर ही होंगे 1 2 3 4. तो अब इस यूनिट सेल में देखिए कहां पर पार्टिकल्स प्रेजेंट है. इन दिस यूनिट सेल 8 particles are present at the cube corners and 12 particles are present at the edge centers. That is why it is called as edge centered unit cell. So keep in mind, इनको याद करने का शॉर्टकट मेथड क्या है. देखिए अगर मैं सिंपल यूनिट सेल लेता हूं तो नंबर याद कर लेना. नंबर इज 8 मींस ये 8 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द क्यूब कॉर्नर. जस्ट लाइक नॉन परमिटिव आ जाइए, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का नंबर होता है 8 + 6 मींस 8 पार्टिकल्स एट क्यूब कॉर्नर 6 एट द फेस सेंटर. अब इस तरह बॉडी सेंटर्ड का नंबर होता है 8 + 1 मींस 8 पार्टिकल्स एट द क्यूब कॉर्नर 1 पार्टिकल एट द बॉडी सेंटर. इसी तरह से एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का नंबर होता है 8 + 2 मींस 8 पार्टिकल्स एट क्यूब कॉर्नर एंड 2 पार्टिकल्स एट द अपोजिट फेस सेंटर्स. और इसी तरह से अगर मैं एज सेंटर्ड यूनिट सेल लेता हूं तो उस केस में नंबर होता है 8 + 12 means 8 particles at the cube corner and 12 particles that are present at the edge centers. अब उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया कि बेसिकली यहां पर 2 टाइप के यूनिट सेल है. सिंपल जिसको मैं परमिटिव बोलता हूं, दूसरा कौन सा था, नॉन परमिटिव और सेंटर्ड. और नॉन परमिटिव सेंटर्ड के मैंने 4 टाइप्स लिख रखे. अब देखिए उसके बाद में लेता हूं ब्रेविस लैटिसेस. What are brevis lattices? अब देखिए brevis lattices का मतलब क्या होता है. As we know, there are 7 type of crystal systems. अभी हमने डिस्कस किया था कि जो क्रिस्टल सिस्टम्स है, there are 7 type. कौन कौन से? क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक. 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स आते हैं. अब अगर मान लीजिए 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम लेता हूं तो देखिए इन 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो यूनिट सेल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, अभी हमने डिस्कस किया क्यूबिक में 3 टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं. सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड.
इस तरह से अगर मान लीजिए टेट्रागोनल में जाता हूं, देयर आर टू टाइप ऑफ यूनिट सेल। हेक्सागोनल के अंदर सर एक होता है कौन सा, सिंपल। इस तरह से रोम्बोइडल में सिर्फ एक टाइप होता है कौन सा, सिंपल। इस तरह से अगर मान लीजिए ऑर्थोरोम्बिक में जाता हूं तो उसमें चार टाइप के यूनिट सेल होते हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। इस तरह से अगर मोनोक्लिनिक में जाता हूं तो उसमें टू टाइप के यूनिट सेल होते हैं, और ट्राइक्लिनिक में एक होता है सिर्फ कौन सा, सिंपल होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये देयर आर 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स एंड कोरस्पॉन्डिंग टू दिस 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम टोटल टाइप ऑफ यूनिट सेल आप लीजिए कितने, 5 6 7 और 7 कितने होंगे, 40। कितना हो जाएगा, 40। सो इट मींस basically there are 7 type of crystal systems and corresponding to these 7 crystal system 14 type of unit cells are there, and keep in mind these 14 type of unit cells corresponding to 7 type of crystal systems that are called as Bravais lattices। तो ध्यान रखिए Bravais lattices कितने होते हैं, 14। और Bravais lattices का सिंपल सा मतलब क्या होता है, जो बेसिक 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है उसमें टोटल कितने टाइप के यूनिट सेल होंगे उनको क्या बोलते हैं, Bravais lattices। तो बोले क्या होगा Bravais lattices, 14 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स corresponding to 7 type of crystal systems that are called as Bravais lattices। So simply 14 types of unit cells corresponding to 7 type of crystal systems are called as Bravais lattices। इन्हीं को क्या बोलते हैं, Bravais lattices। And keep in mind this one is most important, you must know what are the Bravais lattices। तो Bravais lattices simply क्या होता है, 14 type of unit cell which corresponds to 7 type of crystal systems। Now question comes, in different type of unit cells that can be simple, that can be face centered, that can be end face centered, in different type of unit cells how we can calculate the number of atoms। So now we will discuss about the now it is the most important portion, that is numerical portion। तो देखिए इसमें क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ number of atoms in different type of unit cells। of cubic system। कि मान लीजिए मेरे पास क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में आपको पता भी सिंपल यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, एज सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। So in different type of unit cells, how we can calculate the number of atoms? तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, you must know what is the contribution of an atom when it is present at a particular position। क्योंकि आपको पता भी कोई भी यूनिट सेल that will be surrounded by other unit cells। तो इसका मतलब atoms are shared by different type of unit cells। अब मान लीजिए एक एटम दो यूनिट सेल के बीच में है, तो पर यूनिट सेल उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, हाफ होगा। Just like suppose one atom is shared by 4 unit cells, तो उसका contribution per unit cell में कितना होगा, 1/4 होगा। So first of all, you must know what is the contribution of an atom when it is present at different position। तो ध्यान रखिए, an atom at, सबसे पहले देखिए Q corner contributes 1/, कि मान लीजिए क्यूब कॉर्नर के ऊपर कोई भी एटम प्रेजेंट है, then this atom will be surrounded by 8 similar cubes। An atom at the cube corner that will be surrounded by 8 similar cubes, that is why contribution of that atom for every cube that will be 1/8। second देखिए, an atom at face center contributes half। चलिए मान लीजिए कोई भी एटम फेस सेंटर के ऊपर है, then this atom is surrounded equally by 2 unit cells। कि फेस सेंटर का जो एटम होगा that will be shared by
2 यूनिट सेल्स, तो पर यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, हाफ होगा. जस्ट लाइक एन एटम एट एज सेंटर contributes 1/4. अगर मान लीजिए कोई भी एटम एज सेंटर के ऊपर है, then this atom will be surrounded by 4 unit cells. तो per unit cells का contribution कितना हो जाएगा, 1/4. And an atom at body center contributes 1. Because an atom when present at the center of the unit cell, then that will not be shared by other unit cell. तो उस केस में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इसका 1 होगा. सो यू मस्ट नो दीज 4 पॉइंट्स बिफोर गोइंग टू न्यूमेरिकल्स. अगर मान लीजिए आपके पास क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, देन इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम एन एटम प्रेजेंट एट क्यूब कॉर्नर दैट विल कंट्रीब्यूट बाय 1/8. रीजन अगर पूछ ले जाए तो आप सिंपली कहेंगे एन एटम एट क्यूब कॉर्नर इज सराउंडेड बाय 8 सिमिलर क्यूब्स. दैट इज व्हाई contribution of this atom for every unit cell that will be 1/8. Just like an atom at face center that contributes half, atom at edge center contributes 1/4, और body center के ऊपर जो atom हो उसका contribution कितना हो जाएगा, 1. Now we will calculate the number of atoms in different type of unit cells. कैसे देखिए, first of all number of atoms in simple unit cell. Now as you know, in a simple unit cell 8 atoms are present at the cube corners, and as we know contribution of every atom at cube corner is 1/8. तो इसमें टोटल एटम कितने होते हैं, 1. इस सिंपल यूनिट सेल के अंदर टोटल एटम कितने, 1, because 8 atoms are present at the cube corner and contribution of every atom that is 1/8. That is why in a simple unit cell only one atom is there. Second, number of atoms in face centered unit cell. Face centered unit cell. Now as we know, in a face centered unit cell 8 atoms are present at the cube corner with contribution of every atom 1/8. 6 atoms are present at the face centers with contribution of every atom half. तो यहाँ पर देखिए टोटल एटम कितने हो जाएंगे, 4. So in a face centered unit cell total number of atoms there are 4. Just like number of atoms in body centered unit cell. Now as you know, in a body centered unit cell 8 atoms are present at the cube corner with contribution 1/8, and 1 atom is present on the body center with contribution 1. तो यहाँ पर टोटल एटम कितने हो जाएंगे, 2. Just like number of atoms in and face center units. Now as you know, in an end face centered unit cell 8 atoms are present at the cube corner with contribution 1/8. 2 atoms are present at the end faces with contribution half. तो यहाँ पर देखिए टोटल एटम कितने होंगे, 2. And just like number of atoms in edge centered units. Now in edge centered unit cell 8 atoms are present at the cube corners, contribution 1/8. 12 atoms are present at the edge centers with contribution 1/4. तो यहाँ पर टोटल एटम कितने होंगे, 4. So keep in mind, in the cubic crystal system, if unit cell is simple, number of atoms per unit cell is 1. If that is face centered or edge centered, दोनों में कितने कितने एटम है, 4. And if that is body centered and face centered, तो उस केस में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 2. And keep in mind, number of atoms present per unit cell that is called as unit cell constant.
कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट सेल कांस्टेंट। नंबर ऑफ एटम्स और यूनिट सेल इज कॉल्ड एज यूनिट सेल कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय Z। कि जो यूनिट सेल कांस्टेंट उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। अब देखिए फॉर क्यूबिक सिस्टम, फॉर क्यूबिक सिस्टम यूनिट सेल कांस्टेंट Z कैसे निकालते देखिए, NC डिवाइडेड बाय 8 प्लस NF डिवाइडेड बाय 2 NE, ये कैपिटल ले लेता हूं सारे, NE डिवाइडेड बाय 4 NI डिवाइडेड बाय 1। अब देखिए यहां पर NC क्या होता है, NC का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स एट क्यूब कॉर्नर्स, एंड एज वी नो कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरी क्यूब कॉर्नर एटम इज 1/8, इसलिए इसको मैंने 8 से डिवाइड किया। NF का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स एट फेस सेंटर्स, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम एट फेस सेंटर इज हाफ, तो उसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, 2 से। NE का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स एट एज सेंटर्स, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम एट एज सेंटर कितना होता है, इसमें 4 होता है। और NI का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स ऑन द इंटीरियर, और आपको याद होगा कोई भी एटम अगर मान लीजिए यूनिट सेल के इंटीरियर के अंदर है तो वहां पर आपको याद होगा कंट्रीब्यूशन कितना होता है, उस केस में इंटीरियर के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1 होगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए मेरे पास हेक्सागोनल यूनिट सेल है, तो हेक्सागोनल यूनिट सेल में देखिए क्या होता है, एंड फॉर हेक्सागोनल यूनिट सेल नाउ इन केस ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल, यूनिट सेल कांस्टेंट मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, Z से। नाउ इन केस ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल, if an atom is present at the corner, its contribution will be 6, तो मैंने क्या लिख दिया, NC by 6। इसी तरह से मान लीजिए यहां पर कोई एटम प्रेजेंट है फेस सेंटर के ऊपर, तो उसका कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, तो NF डिवाइड बाय 2 NC कॉर्नर के ऊपर कितना होता है, 1/6। इसी तरह से मान लीजिए कोई एटम एज सेंटर के ऊपर है तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/3, तो इसको किससे डिवाइड कर दिया, 3 से। और अगर इंटीरियर के अंदर एटम है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1। तो NI मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑन द इंटीरियर, NE का मतलब नंबर ऑफ एटम एट द एज सेंटर, NF का मतलब नंबर ऑफ एटम्स एट द फेस सेंटर, और अगर मान लीजिए मैं लेता हूं NC तो नंबर ऑफ एटम्स एट द कॉर्नर्स होता है, हेक्सागोन होता है। तो देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास हेक्सागोनल यूनिट सेल है, तो हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर के ऊपर टोटल कितने एटम होते हैं, 12। देयर आर 12 एटम्स एट द कॉर्नर्स ऑफ द हेक्सागोन। उसके बाद फेस सेंटर के ऊपर एटम होते हैं 2, एज सेंटर के ऊपर नो एटम इज देयर, और इंटीरियर के अंदर कितने एटम होते हैं, 3, और कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं टोटल नंबर ऑफ एटम निकालता हूँ कितना आएगा मेरे पास, 6। तो इसका मतलब इन ए हेक्सागोनल यूनिट सेल, अगर मेरे पास कोई भी हेक्सागोनल यूनिट सेल है तो उसमें यूनिट सेल कांस्टेंट कितना होता है, 6 होता है। अब उसके बाद इसी के बेसिस के ऊपर एक दो मैं न्यूमेरिकल्स ले रहा हूँ। देखिए देखिए कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं। देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ, ये देखिए क्वेश्चन, in a cube based unit cell atoms P are at cube corners and atoms Q at face centers. What is formula of the compound? What is formula of the compound? कि जो भी यहां पर कंपाउंड बनेगा उसका फार्मूला क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डज फार्मूला रिप्रेजेंट्स। सो कीप इन माइंड फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट्स सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम्स।
कि उस कंपाउंड में जो भी कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के, उन एटम्स का रेशियो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इसका फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए एक तो एटम कौन से P और दूसरे एटम कौन से Q। नाउ आई हैव टू टेल द फार्मूला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कैलकुलेट हाउ मेनी एटम्स ऑफ P एंड हाउ मेनी एटम्स ऑफ Q आर देयर, और उसके बाद उसका मैं क्या निकालूंगा P और Q के एटम्स का रेशियो दैट विल गिव द फार्मूला। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ P, अब देखिए कहां पर प्रेजेंट है, P आर प्रेजेंट एट द Q कॉर्नर्स। नाउ नोट मेंशन इट मींस 100% Q कॉर्नर्स आर ऑक्युपाइड। तो आपको याद होगा Q कॉर्नर कितने 8 है, इट मींस 8 atoms of P they are present at the Q corner, but contribution of every atom that is 1/8। तो इसका मतलब P के कितने एटम होंगे मेरे पास 1। जस्ट लाइक नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Q, देखिए कहां पर प्रेजेंट है, फेस सेंटर के ऊपर, एंड नथिंग इज मेंशन्ड, इट मींस 100% फेस सेंटर्स आर ऑक्युपाइड। तो इसका मतलब Q के 6 एटम है फेस सेंटर के ऊपर, कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अब मैं निकालूंगा यहां से रेशियो एटम्स ऑफ P एंड Q, कितना आया 1/3। तो इसका मतलब फार्मूला ऑफ द कंपाउंड बोलिए क्या होगा PQ3, फार्मूला ऑफ द कंपाउंड दैट विल बी PQ3, ये कंपाउंड का क्या होगा फार्मूला होगा। तो ध्यान रखिए इस तरह से अगर कोई भी स्टेटमेंट आपको दिया जाता है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड देन कैलकुलेट द रेशियो दैट विल बी फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। नाउ सेकंड प्रॉब्लम देखिए, जैसे आपसे पूछ लिया थे, ये देखिए कैलकुलेट द number of unit cells of sodium present in it 0.23 ग्राम। यहां पर आपको सोडियम का मैंने मास दे दिया कितना 0.23 ग्राम, एंड यू टू टेल हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 0.23 ग्राम ऑफ सोडियम। सो कीप इन माइंड फॉर दिस यू मस्ट नो what type of unit cells are present in sodium। तो ध्यान दीजिए सोडियम कॉम्प्लेक्स BCC टाइप ऑफ यूनिट सेल, BCC का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जो आपका सोडियम उसमें किस टाइप के यूनिट सेल होते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड एज वी नो इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हाउ मेनी एटम्स आर देयर 2। तो इसका मतलब एक यूनिट सेल बनाने के मेरे को कितने एटम चाहिए 2 एटम चाहिए, दैट इज पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स कितने चाहिए मेरे को 2। एक यूनिट सेल को, एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को बनाने के लिए कितने एटम चाहिए आपको 2 एटम चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट हाउ मेनी एटम्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन इट्स गिवन मास, और उसके लिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालो। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। So given mass is 0.23 gram, atomic mass of sodium that is 23। इसका मतलब given mass में कितने मोल्स है सोडियम के 0.01। तो यहां से मैं क्या निकालूंगा नंबर ऑफ एटम्स, किसके बराबर होता है मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो कितने मेरे पास एटम आ जाएंगे 6.022 into 10⁻21। इसका मतलब इन द 0.23 gram of sodium metal 6.022 into 10⁻21 atoms are present, and keep in mind number of unit cells किसके बराबर होता है total number of atoms divided by number of atoms per unit cell, या सीधा मैं बोल सकता हूं divided by unit cell constant। तो आपको याद होगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का यूनिट सेल कांस्टेंट कितना होता है 2। तो देखिए यहां पर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एटम कितने अवेलेबल है 6.022 into 10⁻21, and to construct one unit cell or you can say how many atoms are present per unit cell in a BCC unit cell 2। तो यहां पर देखो नंबर ऑफ यूनिट सेल मेरे पास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स
कितना हो जाएगा 3.011 into 10 to the power 21. इसका मतलब given mass of sodium that will possess 3.011 into 10 to the power 21 unit cell. अब इसी तरह से मान लीजिए इस एलिमेंट के अंदर यूनिट सेल होते हैं फेस सेंटर टाइप के, तो उस केस में मैं क्या करता है, फर्स्ट ऑफ आई विल कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड देन टू गेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स दैट बी डिवाइडेड बाय 4. इसी तरह सिंपल यूनिट सेल होता तो जितने एटम आएंगे उतने क्या हो जाएंगे उसके अंदर यूनिट सेल्स हो जाएंगे. अब उसके बाद एक और प्रॉब्लम देखिए इसमें, ये देखिए क्वेश्चन है मेरे पास कि कंपाउंड एक कंपाउंड है एटम्स X एट Q corners and Y atoms Y at face centers. Suppose you are given any compound और उस कंपाउंड में जो यूनिट सेल है तो उस यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर के ऊपर एटम X प्रेजेंट है, फेस सेंटर के ऊपर कौन सा एटम है Y. नाउ if all the atoms are removed from an axis connecting two face centers and passes through body center. अभी करेंगे, हमने एक एक्सिस से सभी एटम्स रिमूव कर दिए और ये एक्सिस की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक्सिस दो फेस सेंटर्स को कनेक्ट कर दिया और किससे पास होनी चाहिए, बॉडी सेंटर की तरफ पास होना चाहिए. देन फर्स्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट्स एंड सेकंड simplest formula of the compound. Simplest formula of. अब ध्यान से पहले स्टेटमेंट देखिए, क्या स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, एक कंपाउंड है एटम्स X एट द Q कॉर्नर्स, कि कोई भी कंपाउंड उसके यूनिट सेल में Q कॉर्नर के ऊपर एटम X है और एटम Y कहां पर प्रेजेंट है, फेस सेंटर के ऊपर. पर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, इफ ऑल द एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एन एक्सिस कनेक्टिंग टू फेस सेंटर्स, कि एक एक्सिस दो फेस सेंटर को कनेक्ट कर रही है, वहां से मैंने सभी एटम्स रिमूव कर दिए और ये एक्सिस कहां से पास होनी चाहिए, दैट पासेस थ्रू द बॉडी सेंटर. देन व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल एंड सेकंड व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेल. तो उसके लिए देखिए सबसे पहले मैं आपको यूनिट सेल बता रहा हूं. देखिए ये यूनिट सेल, ये मेरे पास यूनिट सेल, अब इस यूनिट सेल में देखिए एटम कहां पर प्रेजेंट है, एटम X उसको मैंने रिप्रेजेंट किया सर्कल से, कहां पर प्रेजेंट है, एक क्यूब कोड 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक, उसके बाद एटम Y को मैंने रिप्रेजेंट किया एटम Y है उसको भी रिप्रेजेंट कर देता हूं ऐसे क्रॉस स्टार से रिप्रेजेंट. तो एटम Y देखो कहां कहां प्रेजेंट है, Y ऐसे मतलब फेस सेंटर, देखो फेस सेंटर है 1 2 3 4 5 6 8. ठीक, अब आप ये देखिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, मैंने एक एक्सिस पास किया और उस एक्सिस की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, दिस एक्सिस दैट मस्ट कनेक्ट द टू फेस सेंटर्स, और कहां से पास होना चाहिए, बॉडी सेंटर से. तो इसका मतलब एक्सिस मैं ये ले लेता हूं, देखिए ये मेरा एक्सिस है. अब ये करेंगे कि इस एक्सिस के ऊपर जितने भी एटम आते हैं सभी को मैंने हटा दिया. तो ध्यान से देखिए इस एक्सिस के ऊपर सिर्फ दो Y एटम है
कौन से? जो फेस सेंटर के ऊपर प्रेजेंट है। इस तरह स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 2 एटम्स ऑफ Y, 2 एटम्स ऑफ Y आर, क्योंकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो एक्सिस मैंने ड्रा किया उसके ऊपर सिर्फ 2 एटम आएंगे, कौन से? जो फेस सेंटर के हैं। इसका मतलब 2 एटम मैंने Y के हटा दिए इसमें से। अब देखिए पहले निकाल लीजिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ X, 8 है, कहां पर प्रेजेंट है? क्यूब कॉर्नर के ऊपर। तो इसका मतलब X के टोटल कितने एटम होंगे? 1। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Y, देखिए कितने बचे आपके पास? टोटल कितने थे? 6 में से 2 मैंने रिमूव किए, कितने बचे? 4। कहां पर प्रेजेंट है? फेस सेंटर्स के ऊपर। और अगर मान लीजिए फेस सेंटर के ऊपर प्रेजेंट है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? हाफ। तो इसका मतलब 1 atom of X that is present at corners and 2 atoms of Y that are present at the face center. तो पहले का आंसर क्या आएगा? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। बोले कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स? टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? कि 1 atom of X, 2 atoms of Y, तो टोटल एटम कितने होंगे? 3। नाउ फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, फार्मूला ऑफ कंपाउंड, फार्मूला रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ X एंड Y। यहां पर X और Y के एटम का रेशियो कितना? 1:2। इस वाला कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा? XY2। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड दैट विल बी XY2। और अगर यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम देखो तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने यहाँ पर? 3 है। 1 atom of X and 2 atom of Y are there. So go through these topics and a lot of problems are there. आप देखिए बुक के अंदर असाइनमेंट के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इस तरह से फार्मूला निकालना है, किसी के अंदर एटम्स का नंबर निकालना है, कहीं से किसी भी एक्सिस से एटम को रिमूव किया, कॉर्नर से एटम को रिमूव किया, तो आपको पता होना चाहिए अगर एक एटम में किसी पोजीशन से रिमूव करता हूं देन हाउ मेनी एटम्स आर लॉस्ट, तो टोटल में से आप डिक्रीज कर सकते हैं। सो गो थ्रू दिस topics and try to solve all the numerical problems based on them. Okay, students.